get up. इनोक उठ जाइए। Hallelujah. When Enoch got up, जब इनोक उठा, God is taking Enoch outside. परमेश्वर इनोक को बाहर ले गया। Come. आजा आजा। We will just talk to him. आइए हम लोग दोनों मिलकर बातें करते हैं। A little far away he went. और थोड़े दूर तक गए Already the morning came. और भोर हो गया। Okay, God said, very good in the house. एक परमेश्वर ने फिर से कहा इनोक तू घर चला जा। He came and slept with his wife and his children. और फिर से वो आकर अपने पति के साथ सोए, अपने बच्चे के साथ सोए। 365 days he did. और 365 साल Every day God enjoyed with Enoch. Enoch enjoyed fellowship with God. परमेश्वर इनोक के साथ आनंदित रहा, उसके साथ संगति करने, और इनोक परमेश्वर के साथ संगति करने में आनंदित रहा। Every day. हर दिन। Sometimes God would take very far away. कई बार परमेश्वर उसको दूर तक ले जाता था। One day, एक दिन God is talking, Enoch is talking. परमेश्वर इनोक से बात कर रहा है, इनोक परमेश्वर से बातें कर रहा है। Listen carefully, listen carefully. ध्यान देके सुनिए। Suddenly, God and Enoch entered heaven. परमेश्वर और इनोक स्वर्ग तक पहुंच गए। Enoch said, Lord, I came heaven. इनोक ने कहा परमेश्वर मैं तो स्वर्ग आ गया। God told him, no, don't go to the earth. और फिर परमेश्वर ने इनोक से कहा तू पृथ्वी पर वापस I नहीं need you. जा, मुझे तेरी जरूरत है। That desperation is for you. वैसा बेचैनी रिश्ता वो आपके लिए भी रखता है। Longing for your fellowship. परमेश्वर रुखा रहता है आपके साथ संगति करने। God doesn't care about anything. देखो परमेश्वर किसी चीज के लिए फिक्र नहीं करता। Hey, you know, all the time you will be with me. ए इनोक हमेशा तो मेरे संग रहेगा That is enough for me. और वो मेरे लिए काफी है। When you understand this, जब आप इस बात को समझते हो, when you relate to God every time, जब आप हर समय परमेश्वर के साथ जुड़ते हो, your spiritual life will not at all go down. आपका आत्मिक जीवन बिल्कुल नीचे नहीं जाएगा। Every day you're going higher and higher and higher. हर दिन आप ऊंचाई 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 में जाओगे। The Christian life is working with God not only Sundays and Fridays. और क्रिस्ती जीवन परमेश्वर के साथ कार्य करना केवल रविवार और शुक्रवार को नहीं। Every minute you're just with Jesus. Jesus is with you. हर एक क्षण आप यीशु के संग और यीशु आपके संग। That is why the Bible says, इसलिए बाइबल कहती है Christ is in you. मसीह आप में है, He is the hope of glory. वो महिमा का आशा है। One more translation. और एक अनुवाद, Christ is in you. मसीह आप में है, You are partaking His glory. आप उसकी महिमा में भाग लेते हो। Amen. Are you hearing? Yes. Please. Listen carefully. ध्यान देके सुना। Who is inside of you? आपके अंदर कौन है? Who is inside? आपके अंदर कौन है? Jesus Christ is inside of you. यीशु मसीह आपके अंदर है, That's the hope of glory. वो महिमा का आशा है। Bible says this is a mystery. बाइबल कहता है ये एक रहस्य है। Hallelujah. हालेलुया। It's a mystery for others. ये औरों के लिए एक रहस्य It is है, a life for others. लेकिन हमारे लिए जीवन है। Living with Jesus. यीशु के संग जीना, Walking with Jesus. यीशु के संग चलना, Talking with Jesus. यीशु के संग बातें Eating करना, with Jesus. यीशु के संग भोजन लेना। How can Pastor relate? कैसे पासवान हम यीशु के संग भोजन ले सकते हैं? Revelation chapter 3 verse 20 says, और प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय का 20वां वचन कहता है, listen carefully. ध्यान देके सुनना। Then the Bible says, और वहाँ पर बाइबल कहती है, I will eat with you, you will eat with me. अब मैं तुम्हारे संग भोजन करूंगा और आप मेरे संग भोजन करोगे। What is that? वो क्या है? That intimate relationship with God. परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध। When you cultivate this habit, जब आप इस स्वभाव को अपने अंदर बना लेते हो, Jesus will not leave you and go. यीशु कभी भी आपको छोड़कर आपसे दूर नहीं होंगे। Amen. आमेन। Amen. आमेन। That is Jesus.
वो यीशु है, That Jesus is inside of you. वो यीशु आपके अंदर है, That Jesus is inside of you. वो यीशु आपके अंदर है। Amen. आमेन। Hallelujah. Hallelujah. That is why, enjoyed fellowship with the God. इसलिए इनोक भी परमेश्वर के साथ संगति रखने में That आनंदित is रहो। how God also enjoyed with fellowshipping with you. इसलिए परमेश्वर भी उसके संगति रखने में Why आनंदित रहो। God has created you and me. क्यों परमेश्वर ने आपको और मुझे रचा है? Not something else. किसी और बात के लिए नहीं। The Bible says, बाइबल कहती है, I live among you. मैं तुम्हारे बीच में निवास I will करता हूँ, walk among you. मैं तुम्हारे संग चलता हूँ। What is this? ये क्या है? God doesn't leave you. वो तुमको नहीं छोड़ता है। Why? क्यों? Because क्योंकि you are a creation of God. आप परमेश्वर की सृष्टि हो। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। You are image of God. आप परमेश्वर के स्वरूप हो। Exactly how God is, you are there. जैसे प्रभु है वैसे ही आप है। Millions of angels are there. और करोड़ों स्वर्ग Millions of cherubim and seraphim are there. और चेरुबीम और सेराफिम बहुत सारा है। 24 hours they are worshiping God. 24 घंटे वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। But here लेकिन यहाँ पर we will sing one song. हम एक गीत गाते हैं, He leave the throne. वो सिंहासन को छोड़ता है, Come enjoy your हमारे और आपकी आराधना का आनंद लेता है। वो हमारा आराधना को चाहता है। You're worshiping something. आप ऐसे मत सोचो किसी चीज की आप When आराधना you are करते हो। worshiping and when you are praising and thanksgiving to the Lord, जब आप स्तुति आराधना करते हो परमेश्वर को, you are preparing the throne of God. आप परमेश्वर के लिए एक सिंहासन को तैयार करते When हो। you are preparing the throne, जब आप एक सिंहासन को तैयार करते हो, devil will not come and sit there. शैतान वहां पर आके नहीं बैठता है, Because क्योंकि that throne has built by you through your praises. और वो सिंहासन आपके द्वारा बनाया गया है, उस स्तुति के द्वारा बनाया गया है। That is what Psalm is writing. और वो ही भजन संगीतकार कहता है, God is sitting on the praises of Israel. और परमेश्वर इस्राएलों की स्तुति में विराजमान है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। When you are praising God in your house, अपने घर में इस परमेश्वर की स्तुति करते in हो, your personal life, आपके व्यक्तिगत जीवन में who is sitting with you, आपके संग कौन बैठता who है? is sitting in you, कौन आपके अंदर बैठता है? King of kings and Lord of lords. राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। Hallelujah. हालेलुया। That is why worship is very, very important. इसलिए आराधना बहुत बहुत महत्व का है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Are you happy? क्या आप आनंदित है? Sister, are you happy? क्या आप आनंदित है? Okay, listen carefully. ध्यान देके सुनना। When you are worshiping God, जब आप आराधना करते हो परमेश्वर की, then God will show His glory. तब परमेश्वर उसकी महिमा को दिखाता है। He manifested His glory. वो उसकी महिमा को प्रकट When करता the है। glory will be manifested, जब वो महिमा प्रकट होता है, your areas will be blessed by the Almighty God. हर एक क्षेत्र आपके जीवन का आशीर्वाद होगा, आशीषित होगा पर प्रभु यीशु के द्वारा। But many times, लेकिन कई बार somebody is worshiping and singing. कोई तो भी आराधना कर रहा We are है, singing somewhere. हम कहीं तो भी और देख We रहे are not involving. हैं, हम अपने आप को We are not शामिल नहीं praising करते, God. हम परमेश्वर की स्तुति नहीं करते। Listen carefully. ध्यान देके सुनना, The Father is searching true worshipper. पिता एक सच्चा आराधक को ढूंढता है। The Father need true worshipper, पिता को एक सच्चा आराधक की जरूरत है, not worship leader. एक आराधना करने वाले अगुवे की जरूरत नहीं है। Hallelujah. The Bible didn't say it's a worship leader. बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि आराधना करने वाले अगुवे, But Bible says true worship. लेकिन बाइबल कहता है सच्चे आराधक को ढूंढता है। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। When you become a true worshipper, जब आप एक सच्चे आराधक बनते हो, you are the true seeker of God. आप मसीह के एक सच्चे ढूंढने वाले, खोजने वाले बनते The हो। spirit of revelation in you जो प्रकाशन की आत्मा आप में है, will reveal God to you. परमेश्वर के
बारे में आपके द्वारा प्रकट किया will जाएगा reveal the characters of God before you. और परमेश्वर के चरित्र को आपके सामने रखेगा। When the Holy Spirit will reveal you, जब पवित्र आत्मा आपको प्रकट करेगा, that is the time वो समय है you can understand Jesus better than anybody. आप यीशु को किसी और से ज्यादा आप उसको समझ पाओगे। Hallelujah. आमीन। We will just continue yesterday's little bit message. कल का शाम का हम थोड़ा सा संदेश को फिर से आगे बढ़ेंगे उसमें, Because seeking God क्योंकि परमेश्वर को खोज करना is very priority in our life. हमारे जीवन में सबसे मुख्य स्थान है। The Bible says बाइबल कहती है when you are seeking God, जब आप परमेश्वर की खोज करते हो, God will unveil His character. परमेश्वर अपने चरित्र को खुलासा करके बताता है। Where is seeker? जहाँ पर ढूंढने वाला है, There is God. वहाँ पर परमेश्वर मौजूद When है। you are seeker in your family, जब आप आपके परिवार में खोजने वाले बनते हो, God will come to your family. परमेश्वर आपके परिवार में आ जाएगा। The Bible says, बाइबल कहती है, listen carefully. ध्यान देके सुनना, First Peter, Second Peter, दूसरा पेत्रस chapter 1 verse 3 says, पहले अध्याय का तीसरा वचन, दूसरा पेत्रस का पहले अध्याय का तीसरा वचन, For His divine power has bestowed upon us all things that to life and godliness through the knowledge of Him who called us by and His own glory and excellence. Anybody can read that? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, हाँ। जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। Everything given to us, और सब कुछ हमें दिया गया है, the pertaining life and godliness. और जीवन और दैविकता के लिए। How that God is giving to you? और कैसे परमेश्वर हमें देता है? When you know more about God, जब आप परमेश्वर के बारे में ज्यादा जानते हो, everything given unto you through Lord Jesus सब Christ. कुछ आपको प्रभु यीशु के द्वारा दिया गया है। That is why we must understand knowing God is not one day process. इसलिए हमको ये समझना है, परमेश्वर को जानना एक दिन का काम नहीं है। Till last breath, हमारे आखिरी श्वास तक we have to know God. हमें परमेश्वर को जानना जरूरी है। Smith Wigglesworth says, स्मिथ विगलस्वर्थ परमेश्वर का दास ऐसा कहते हैं, I changed 7 Bibles. He is reading the word all the time. वो हमेशा बाइबल पढ़ते रहने वाला व्यक्ति, The Bible was torn out. और पढ़ते पढ़ते बाइबल पढ़ जाता था। 7 Bibles he just read and read and read. 7 बाइबल उसको लगा बदलते 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 पढ़ते पढ़ते गया, और वो पढ़ गया तो नया बाइबल But ऐसा साफ I got from this just one drop. और वो कहता है इतने 7 बाइबल बदल के पढ़ने के बाद में God is, मुझे मिला। God is like ocean. परमेश्वर एक बड़ा है समुद्र, Word of God also is a ocean. वचन भी एक समुद्र के समान है। Amen. आमीन। Every time हर समय you decide to seek God, जब आप निर्णय लेते हैं आप परमेश्वर को ढूंढोगे, you will find God. आप परमेश्वर को पाओगे, You will obtain God. आप परमेश्वर को प्राप्त The करोगे। Revelation chapter 1 verse 1 says, प्रकाशित वाक्य का पहले अध्याय का पहला this is the unveil of Jesus Christ which God gave him. Share with his loving servants. और एक यीशु मसीह को प्रकट करता है जो उसके दासों के द्वारा होता है। All revelation tell about Jesus. और पूरा प्रकाशित वाक्य यीशु के बारे में कहता है, His second coming. उसके दूसरे आगमन, How they will come. वो कैसे The आएगा, marriage and the bridegroom. और शादी और वो दूल्हा दुल्हन के बारे में। This revelation about only the Jesus Christ. ये प्रकाशन केवल यीशु मसीह के बारे में है। That is why the Bible says, इसलिए बाइबल कहती है, when you read Revelation, जब आप प्रकाशन वाक्य को पढ़ते when you हो, are reading, जब आप पढ़ते हो, when you are doing the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को देख the रहे हो, Bible says you are so blessed. परमेश्वर का वचन कहता है आप आशीषित होगे। Amen. आमेन, Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। The last verse. और आखिरी
आखिरी वचन है। Amos chapter 5 आमोस के किताब 5वां अध्याय was from 4 and 6. 4 से लेके 6। Listen carefully. ध्यान देके सुनना। This is the verse I got. Now I'm coming to here. मैं यहाँ पर आने के पहले ये वचन मुझे मिला है। Brother, आकाश where you are? सो गए। अब जगह But listen. चला जाओ, पहले चेयर में आ जाओ, पीछे की बाजू I में। don't believe when you close your eyes and listen to the word of God. मैं ये विश्वास ही नहीं करता आप आँख बंद करके परमेश्वर का वचन सुन रहा है। Close your eyes and pray. आँख बंद करके प्रार्थना कर But सकते हो। not to close your eyes and listen to the word. आँख बंद करके वचन को नहीं सुनोगे तुम। Amen. Idli will make you to sleep. इडली हमेशा आपको सोने लगाएगी। Hallelujah. Listen here. ध्यान देके सुनना। Say the two words says like this. यहाँ पर वचन ऐसा कहते हैं, For thus says the Lord of hosts of Israel. और यहोवा सेनाओं का परमेश्वर यूं कहता है। Who is telling this word? ये वचन कौन कह रहा है? It is not telling by prophet. ये नबी नहीं कह रहा है, It is Almighty God. ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर कह रहा What है। is telling here? वो यहाँ पर क्या कह रहा है? This verse you must memorize. देखो ये वचन को तुमको याद कर लेना। Very simple word. बहुत साधारण सा वचन The है। Bible says, बाइबल कहती है, seek me, मुझे खोज, मेरी खोज में लगो। inquire for of me, I require for me as you are. मुझे तुम जैसे हो वैसे ही ढूंढो, मुझे प्राप्त करो। The Bible says, बाइबल कहती है, why you are seeking God? जब आप परमेश्वर की खोज When करते you are हो, seeking God, जब आप परमेश्वर की खोज करते हो, God is telling, परमेश्वर कह रहा है, and you shall live. तब जीवित रहोगे। Amen. आमीन। The 6th verse also says, छठा वचन भी कहता है, seek after me, यहोवा की खोज करो, seek the Lord, प्रभु को खोजो, and you shall live. तब जीवित रहोगे। What is this? ये क्या है? Seeking God. परमेश्वर को ढूंढना। Sister, don't see it. उधर नहीं देखना, आप आगे Don't देखना। see the children. बच्चों को छोड़ दो, रहेंगे के लिए। Seeing children. Why are you seeing children and missing the word? आप परमेश्वर बच्चों को देखते देखते आप वचन खो दोगे। Listen carefully. ध्यान देके सुनना। When you're seeking God, जब आप परमेश्वर की खोज करते हो, is the foundation of your lifestyle. आपके जीवन शैली का वो नींव बन जाता है। What is the meaning of live? जीवन जीना क्या है? उसका क्या Means है? whatever you need, जो भी कुछ तुम्हारी जरूरत you है, don't pray उसके लिए तुम प्रार्थना मत Seek करो, God. केवल आप प्रभु की खोज करो। because क्योंकि who your father knows क्योंकि आपका पिता जानता what you है want. तुम्हें क्या चाहिए। Already knows. वो जानता है, He knows. वो जानता है। When you seek God, जब आप परमेश्वर की खोज करते हो, when you are seeking God every time, हर समय जब आप परमेश्वर की you will unlock your blessings. आप आपके आशीषों को You खोल will दोगे, unlock your anointing. आपके अभिषेक को आप खोल दोगे, You will unlocking miracles, signs and wonders and supernatural things. आप अद्भुत चिन्ह चमत्कार कई बातों को आप खोल दोगे। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। That is what the Bible says here. और यही यहाँ पर वचन कहता है, God is only stating that. परमेश्वर केवल यही कहता है, Seek the Lord. प्रभु को खोजो। Why? क्यों? Because क्योंकि He understands वो समझता है the people will seek after me, लोग जब मुझे ढूंढेंगे search me, और मुझे खोजेंगे and find, और मैं पाऊंगा, they will receive everything. उनको सब कुछ मिल जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। But what the devil says, लेकिन शैतान क्या कहता है? you don't seek God, ए परमेश्वर को मत ढूंढ, seek blessing, आशीष को ढूंढ, pray for anointing, अभिषेक के लिए प्रार्थना कर, gifts of the Holy Spirit, वरदानों के लिए प्रार्थना कर, miracles. चमत्कार के लिए प्रार्थना कर। No, no, no. ना 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 ना, God is telling, परमेश्वर कह रहा है, seek the Lord, प्रभु को खोजो, you shall live. तुम जीवित रहोगे। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Every time
हर बार you're seeking God. जब आप परमेश्वर को खोजते हो, What you're doing? आप क्या करते हो? You're just embracing God. आप परमेश्वर को गले लगाते हो God will also और embrace you. परमेश्वर भी आपको गले You're लगाएगा। kissing feet of Jesus. आप यीशु के चरणों को चूमते हो God also kissed you. और परमेश्वर भी आपको चूमता है। That is a seeking God. वो परमेश्वर को ढूंढना है, खोजना है। Hallelujah. When you made up your mind, जब आप आपके मन को बनाते the हैं, Holy Spirit is in you. पवित्र आत्मा आप में है, He make you seek God all the time. वो आपको परमेश्वर को खोजने, हर समय खोजने लगाता He है। will push you वो आपको धकेलेगा to seek God. परमेश्वर को ढूंढने, Because He is the Spirit of revelation. क्योंकि वो प्रकाशन की आत्मा When you है। seek God, जब आप परमेश्वर the की खोजते Spirit of हो, revelation inside of you, प्रकाशन की आत्मा आपके अंदर it will activate. वो कार्यशाली होता है। It shows you who is God. वो आपको दिखाता है कि परमेश्वर कौन It है। shows you what is the problem. वो आपको दिखाता है समस्या कहाँ पर है। The Spirit of revelation shows you what is the solution. प्रकाशन की आत्मा आपको दिखाता है कि इसका सुझाव क्या है। Everything will stop सब कुछ शुरू हो जाएगा on seeking God. जब आप परमेश्वर की खोज करते When हो। God gave this message, जब परमेश्वर ने इस संदेश को दिया, Lord, this is a Holy Spirit school, Lord. पवित्र आत्मा का पाठशाला है। We have to speak about the Holy हमें Spirit. तो पवित्र आत्मा के बारे में बातें The करनी है। Lord Holy Spirit told me प्रभु पवित्र आत्मा ने मुझसे that कहा, is my main work. वो मेरा मुख्य कार्य है। Hallelujah. हालेलुया। The work of the Holy Spirit पवित्र आत्मा का मुख्य कार्य make you to seek after God. आपको परमेश्वर को खोजना, Run after God. परमेश्वर के पीछे दौड़ने लगा। When you're running after God, जब आप परमेश्वर के पीछे, God also run after you. परमेश्वर भी आपके पीछे दौड़ता है, Because क्योंकि He needs you. उसे आपकी जरूरत है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Are you happy? क्या आप आनंदित हो? Now onwards decide. अभी से निर्णय लो, Seek God. परमेश्वर को खोजो। When you are worshiping, जब आप आराधना करते हो, just seek. ढूंढो, Just search God. परमेश्वर की खोज में आओ, Oh God. परमेश्वर से प्रेम करो। When you are praying, जब आप प्रार्थना करते हो, don't seek answer. उत्तर को मत ढूंढना, Just seek God. केवल परमेश्वर को ढूंढना। When we find God, जब हम परमेश्वर को प्राप्त करते हैं, answer is in God. उत्तर परमेश्वर में ही होता है। Everything in Jesus. हर एक बात यीशु में होता है। That is why the Lord said in Jeremiah, इसलिए परमेश्वर यिर्मयाह में कहता when you है, seek earnestly, जब आप पूरी तरह हृदय you से will find me. तुम मुझे पाओगे। Means उसका अर्थ है, you will find your answer. मैं तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर You मिल will जाएगा। find what you need in this earth. तुम्हें इस पृथ्वी में क्या जरूरत है वो You तुम्हें find your job. तुम्हें काम मिल जाएगा। You find your girl and your boy. जब आपको Your marriage in Christ. आपके शादी जो मसीह में होना चाहिए वो मिल जाएगा। Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That is why many times we'll sing, इसलिए कई बार हम गीत गाते हैं, everything Jesus for me. सब कुछ मेरे लिए यीशु है। That's the lies. वो झूठ है। Simply we are telling. हम केवल झूठ गाते हैं। When everything is Jesus for you, अगर आपके लिए सब कुछ यीशु ही काफी है you don't need anything. तो फिर आपको इस संसार का कुछ भी नहीं चाहिए। Amen. Because क्योंकि anything you want, अगर तुमको कुछ भी you जरूरत will है, not go to the people. आप लोगों के पास नहीं जाओगे। You not expect from your wife and your husband. आप आपके पत्नी या पति से नहीं You अपेक्षा will go करोगे। to God. आप परमेश्वर के पास जाएंगे। Jesus, I यीशु, need this. मुझे ये जरूरत है। I believe मैं विश्वास you करता have हूँ, given already. तूने दे दिया है मुझे। Praise God. स्तुति कर दो। Amen. आमीन। Telegram prayers. ये टेलीग्राम प्रार्थना है। Telegram, and when you pray telegram, God also send telegram answer. आप टेलीग्राम से उत्तर भेजता है। अभी के जनरेशन को टेलीग्राम पता नहीं होगा। एक छोटा सा हाँ। पत्र में Sorry. लिख के टेलीग्राम, जैसे एक पोस्ट कार्ड होता है ना, उसमें छोटा सा संदेश लिखकर भेजते थे, एक लाइन का। पोस्ट में आता था वो टेलीग्राम। ये आज टेलीग्राम आप नहीं, वो जल्दी पहुंचने के लिए। January 1st, the Lord spoke to me. और जनवरी 1 तारीख को परमेश्वर ने मुझसे बात This is की the है। year इस वर्ष not praying more.
ज्यादा प्रार्थना नहीं करना, only praising God. केवल प्रभु को स्तुति करते हैं। Praise will release your blessing. स्तुति करने में तुम्हारे आशीष आसान है। Thanksgiving is an act of your faith. धन्यवाद का भेंट चढ़ाना तुम्हारा विश्वास का एक कार्य That is है। why the Bible says, इसलिए बाइबल कहती है Psalm 66 verse 17, वचन संगीत के 66 का 17 अध्याय 34, 1 and 2. और वचन संगीत के 34 का पहला और दूसरा। When the Bible says, बाइबल कहती है with my prayer, मेरे प्रार्थना के I द्वारा included thanksgiving. मैंने धन्यवाद को जोड़ा है। Listen carefully. ध्यानपूर्वक सुनना, Prayer and thanksgiving, प्रार्थना और धन्यवाद praising and prayer और स्तुति और प्रार्थना is walking together. वो दोनों साथ साथ चलता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Can you read that verse? 66, 70. 66 का 17 वाला वचन वचन संगीत का। मैंने उसको पुकारा और उसकी वह दोनों हाथ मुझसे हुआ। 66, 70. Yeah. I cried unto him with my mouth and he exalted with my tongue. But in one some in translation it says, when I pray, when I cry to God, I cried aloud to him. He was exalted and high praise was high praises, including praise and thanksgiving and prayer will reach before God. और स्तुति और प्रार्थना के साथ कराते हुए जब आप स्तुति गीत गाते हैं तब वो परमेश्वर के पास। Wherever Jesus prayed, जहाँ कहीं भी यीशु की आत्मा है it is totally different. वो बहुत अलग होगा। We are praying for the food, हम भोजन के लिए प्रार्थना करते हैं, but he just looked up to heaven and thanked the Lord. लेकिन यीशु ने क्या किया? स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद का भेंट चढ़ाया भोजन When के he was लिए। standing on the tomb of Lazarus, जब वो लाजरस की कब्र के पास में यीशु खड़ा था, what he prayed, उसने क्या प्रार्थना किया? Father, पिता, you already heard my prayer. तूने मेरे प्रार्थना को सुन लिया है, You already answered my तू prayer. मेरे प्रार्थना का उत्तर दे दिया है। He is thanking God. और वो परमेश्वर को He is धन्यवाद देता है। thanking वो God. परमेश्वर को धन्यवाद देता है He just declared the word. और वो वचन को ऐलान किया, Lazarus, come out! लाजर बाहर आ। The resurrection power went into the Lazarus. वो पुनरुत्थान का सामर्थ्य लाजर के कब्र में आया। Thanksgiving alone released the power of resurrection through you. और धन्यवाद का भेंट चढ़ाना अकेला ही काफी है जो पुनरुत्थान का सामर्थ्य बेचकर आपके लिए जो चाहिए उसको आजाद करने का। Amen. आमेन, Amen. आमेन। I'm not telling not to pray. मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप प्रार्थना करना मत कर दो, प्रार्थना करना But चाहिए, more praising. लेकिन ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की स्तुति करो। When your thanksgiving to the Lord, जब आप परमेश्वर को धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हो, what God was so happy. परमेश्वर इतना आनंदित है, You will attract God. आप परमेश्वर को आकर्षित करोगे Thanksgiving attracts God. और धन्यवाद का भेंट परमेश्वर को आकर्षित करता है। Jonah was in the fish belly योना जो था मच्छी के पेट में था 3 days. 3 दिन। Jonah's second chapter verse 9 says, योना का दूसरा अध्याय का 9वां वचन कहता है, Jonah didn't pray. योना ने वहां पर प्रार्थना The नहीं Bible किया। says, बाइबल कहता है in the midst of pain, in the midst of burning sensation, वो दर्द में उस समय में दर्द के in समय the midst of experience, hell experience, वो नरक का अनुभव में जाने के समय में is thanking God. वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है। What is the 10th word says? और 10वां वचन क्या कहता When है? he was thanking God, when he was praising God, जब वो धन्यवाद दे रहा था परमेश्वर को कर रहा था, brother, don't put on, just listen. आप वचन को ढूंढते मत बैठो, Because Jonah, you will not get it. योना को ढूंढना बहुत मुश्किल है। Huh? Listen carefully. ध्यान देके सुनिए। When after the thanksgiving, और धन्यवाद के भेंट चढ़ाने the के बाद 10th word says, और 10वां वचन कहता है, God commanded the fish vomit Jonah in dry land. परमेश्वर ने मच्छी को बोल दिया बाहर आके सूखा जमीन पर उल्टी कर दे, योना को बाहर डाल दे। You need breakthrough. आपको अगर छुटकारा चाहिए, बड़े ब्रेक थ्रू चाहिए, छुटकारा चाहिए, Thanksgiving.
प्रभु को धन्यवाद का भेंट चढ़ाते ही Praising चाहिए, God. स्तुति करते ही चाहिए। That will make you come out from all your situations. आपके सारे परिस्थिति से आपको बाहर लेकर आएगा। That is why इसलिए the ministry of Jesus, यीशु की सेवकाई instead of spirit of heaviness, और भारीपन की आत्मा के बारे he में granted the garment of praise. वो स्तुति के वस्त्र दिया है। Hallelujah. हालेलुया। But he was on the cross. There is no cloth upon Jesus. लेकिन यीशु खुद क्रूस पर था, उसको उसके अंग में कोई वस्त्र But नहीं। today, लेकिन आज you have a cloth called praise coat. उसने आपको एक वस्त्र दिया है, वो कोट का नाम है स्तुति का वस्त्र। We are putting the praise coat. हम स्तुति के वस्त्र को We पहनते are हैं, showing others. We are showing others. हम दूसरों को दिखाते हैं, Don't show others. दूसरों को नहीं दिखाना है। Praise coat is for yourself. वो स्तुति का वस्त्र When आप you depress, जब आप निराशा में when होते हो, the spirit of heaviness oppressed, जब भारीपन की आत्मा आपको दबाता है, don't pray. प्रार्थना मत करना, Don't go to the pastor. आत्मा के बस मत बोलना। Just lock लेकिन आप or kneel down क्या तुम and नहीं start praising God. परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कर दो। The praise coat will reveal, will deliver you from the spirit of heaviness. और स्तुति का वस्त्र जो पहना है वो आपको भारीपन से छुड़ाते जाएगा। Amen. आमेन। I'm sorry. क्षमा कीजिए, I'm tempted to the worship thanksgiving. मैं धन्यवाद और आराधना के में That is not my subject. वो मेरा विषय नहीं था। But seeking God, लेकिन परमेश्वर को खोज when करना, you seek God, जब आप परमेश्वर को all खोज the करते time you are praising आप God. हमेशा परमेश्वर को स्तुति आराधना करते जाओगे। That will make you seek up to God all the time. वो आपको परमेश्वर को हमेशा ढूंढते रहने लगाता है। Are you happy? क्या आप आनंदित हैं? Make a decision today. आज एक निर्णय लीजिए, Lord, till my last breath, प्रभु मेरा जीवन का आखिरी सांस I तक will not seek anything, Lord. मैं किसी और चीज को नहीं ढूंढूंगा। I will not seek my answer from my prayer. मेरे प्रार्थना का उत्तर भी नहीं ढूंढूंगा। I will not seek anything. मैं किसी चीज को नहीं ढूंढूंगा। I will seek after you, Lord. मैं आपके पीछे बोलूंगा। When you decide that, जब आप ऐसे निर्णय लेते the हो, spirit of revelation प्रकाशन की आत्मा will activate inside. वो आपके अंदर कार्यशाली होता है। He will, the spirit of revelation will push you प्रकाशन की आत्मा आपको धकेलेगा, to seek God. परमेश्वर को ढूंढने लगाएगा। Never than before. पहले से कभी Day ऐसा हुआ by day नहीं। seeking, अब दिन हर दिन आप परमेश्वर को खोजते day हो by day seeking God is different. और हर दिन परमेश्वर को खोजना बहुत अलग है। Amen. आमेन। That is the work of the Holy वो Spirit. पवित्र आत्मा का कार्य है। But Holy Spirit till he is silent, पवित्र आत्मा जब तक शांत है, when you are seeking God, जब तक आप परमेश्वर को खोजते नहीं हो, when you are seeking God, जब आप परमेश्वर को खोजते हो, when you are very much assured, जब आपको पक्का मालूम है, yeah, that is the time. ये वो समय होगा। Holy Spirit will make you to alert. पवित्र आत्मा आपको चौकन्ना कर देगा Reveal God. और प्रभु यीशु के बारे में प्रकाशन देते जाएगा। पिता के बारे में प्रकट करेगा, यीशु के बारे में Holy प्रकट Spirit करेगा। sometimes reveals himself. पवित्र आत्मा कई बार अपने आप के बारे में भी प्रकट करेगा। Amen. आमेन। Are you understanding? क्या आप लोग समझ रहे हैं? Are you understanding? क्या आप लोग समझ रहे हैं? Shall we stop this subject? We'll go to the next subject. क्या हम इस विषय को बंद करें, कोई और विषय ले? हाँ या ना, कुछ तो जवाब दो। Continue. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. When you seek God, जब आप परमेश्वर की खोज करते हो, God will come to you. परमेश्वर आपके पास आएगा। God will visit you. Not only visit you, God will stay in you. परमेश्वर केवल आपके पास आएगा नहीं, लेकिन वहाँ पर आपका He निवास will स्थान बनाएगा। involve in your situation. वो आपके परिस्थितियों में शामिल होगा। When you seek God, when the demonic attacks there, जब आप परमेश्वर की खोज करते हो और कुछ शैतानी आक्रमण है आपके ऊपर, that is the time उस समय में God will come and stand on behalf of you. और आपके तरफ से वो खड़ा होगा। That is why the Bible says, इसलिए बाइबल कहती है, Ezekiel chapter 36 verse 9. एजेकिएल के 36 का 9
हुआ वचन, I am on your side. मैं तेरे तरफ I तेरे am तरफ for से you. मैं तेरे लिए हूँ, I turn towards you. मैं तेरे तरफ मुड़ जाता हूँ। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Are you on God's side? क्या आप प्रभु के तरफ हो? Psalm 56 verse 9 says, भजन संगीत 56 का नाम। surely God is on my side. मुझे पक्का मालूम है प्रभु मेरे तरफ है। See, psalmist is writing, surely God is on my देखो, भजन side. संगीत का लिखना है, पक्का मुझे मालूम है। When I cry to God, जब मैं पुकार उठा प्रभु then को, my enemy will flee from me. तो मेरे दुश्मन मुझसे भाग जाता है। Surely God is on my side. पक्का प्रभु मेरे संग है, The मेरे साथ है। people, what can do to me? तो लोग मेरे विरोध क्या कर सकते हैं? Psalm 118 verse 6 और भजन संगीत 118 का छठा वचन, say, God also telling, परमेश्वर भी on कहता your है, side. मैं तेरे संग हूँ। You are also telling, आप भी बोल रहे हो, you are my side. प्रभु तू मेरे संग है। Many times devil says, कई बार शैतान कहता है, God is also not on your side. People also is not in your side. Family members also is not in your side. देखो प्रभु भी तेरे साथ नहीं है, तेरे परिवार के लोग भी तेरे साथ नहीं, कोई भी लोग तेरे साथ नहीं है। That is the lies of the वो शैतान का झूठ है। destroy that lies. उस झूठ को आप तोड़ दो। God is on your side 24 into 7 24 घंटा परमेश्वर आपके संग है, because He has paid a costly price to bought you. क्योंकि उसने एक मूल्य दाम चुकाया आपको खरीदने के लिए। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Hallelujah. Let it stand up together. आइए हम खड़े हो जाएं। Now, what we can do now? हम क्या करें? Thank you, Jesus. Just don't seek God. Just don't seek the blessings of आशीष God. का प्रभु से आशीष का खोज मत करना। Lord, I need you, Lord. प्रभु मुझे आप चाहिए, I need your presence. प्रभु मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए। Moses was desperate for the presence of God. मूसा जो है परमेश्वर की उपस्थिति के लिए बहताई से, God told Moses, परमेश्वर ने मूसा से कहा, all the people of Israel stiff-necked people. सब इजराइल के लोग एकदम जिद के हटे हुए, Send one angel to take you to the promised land. मैं एक स्वर्गदूत को भेजकर तुम्हें वायदे की जमीन ले जा सकता हूँ। What Moses said, मूसा ने क्या कहा? Lord, प्रभु when you are not coming with us, अगर तू हमारे संग नहीं आता है, we will not take one step ahead. हम एक कदम भी आगे पैर नहीं रखेंगे। One more translation. और एक अनुवाद ऐसा कहता है, When you are not coming with us, अगर तुम मेरे साथ नहीं, हमारे we साथ नहीं आ don't रहे, need the promised land. हमें वायदे के जमीन भी नहीं चाहिए। Amen. आमेन। You will send all the angels. तू सारे स्वर्गदूत को भेज, I don't need angels. मुझे स्वर्गदूत नहीं I चाहिए, need your presence. मुझे तेरी उपस्थिति He चाहिए। is desperate for the presence वो of God. परमेश्वर की उपस्थिति के लिए बहुत व्याकुल था। आमेन। Exodus chapter 33 verse 16, 15 says that. और निर्गमन के 33वां अध्याय का 15 वचन कहता है, When you are not coming with us, अगर तू मेरे संग नहीं आता है, when you are not coming with me, अगर आप मेरे संग नहीं आते हैं, we will not go forward. हम आगे नहीं बढ़ेंगे, We'll stop here हम only. यहीं पर रुक जाएंगे। Without you, तेरे बिना we don't need promised हमें land. वायदे की जमीन भी नहीं Without चाहिए, you, तेरे we बिना don't need blessings. हमें आशीष भी नहीं चाहिए। Such kind of desperation ऐसे आपके अंदर व्याकुलता होना चाहिए, has to come in your heart. आपके हृदय में वैसा बेचैनी होना चाहिए, वैसा तरस होना चाहिए। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Just ask the Lord. आइए परमेश्वर से पूछिए, Ask the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से पूछिए, Lord, Holy Spirit, प्रभु पवित्र आत्मा teach me how to seek God. मुझे सिखा किस तरह से मैं प्रभु को ढूंढूं। Spirit of revelation, प्रकाशन की आत्मा, reveal Jesus in me, Lord. प्रभु यीशु को मुझ में प्रकट कर, Reveal our Heavenly Father in me, Lord. स्वर्गीय पिता को मुझे तू प्रकट कर। When you do this, जब आप ऐसे प्रार्थना करते हो, and every day हर दिन you are a very strongest person in this world. आप इस संसार में बलवंत व्यक्ति बनोगे। Those who know their God, जो अपने परमेश्वर को जानते they हैं, will prove they are strong. वो बलवंत होंगे, They will do exploit for God. वो पराक्रमी काम परमेश्वर के लिए करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Knowing God परमेश्वर को जानना is
of you. और आशीष आपको ढूंढ कर आएगा। Anointing, gifts, miracles will tap in on your house door. वो चमत्कार या वरदान जो भी है आपके दरवाजा में आकर खटखटाएगा। You're not going after blessings. आपको आशीष के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। You are mad for Jesus. आप यीशु के लिए दीवाना The बनोगे। Shunammite woman, वो शूनेमाइट स्त्री all through the night, she was searching for his love, her lover. वो हर पूरे रात को वो अपने प्रेमी को ढूंढ रही है। She was desperate for her lover. वो अपने प्रेमी को बहुत बेचैनी से ढूंढ रही है। Suddenly, अचानक she find him. उसको उसने पा लिया। That is what searching God. वही यीशु को ढूंढना है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Lord, I don't need anything परमेश्वर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। without you. आपके बिना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। Without you, आपके बिना मुझे I कुछ भी don't नहीं need चाहिए। anointing. मुझे अभिषेक भी नहीं चाहिए। Lord, I don't need gifts. मुझे वरदान भी नहीं चाहिए। Lord, without you, I don't need ministry. यीशु आपके बिना मुझे सेवकाई भी नहीं चाहिए। Amen. आमेन। Just ask the Lord. मांगे मांगे प्रभु से। What I'm saying, मैं क्या देख रहा the हूँ? Holy Spirit is just putting the hunger and thirst for the seeking God. पवित्र आत्मा आपके अंदर वो भूख और प्यास को डाल रहा है कि आप प्रभु को खोजें। Please receive that hunger. कृपया करके उस भूख को आप प्राप्त Receive the कीजिए। desperation for वो seeking God. बेचैनी से प्रभु को ढूंढना प्राप्त Receive the thirst. वो प्यास को आप स्वीकारिए। Because क्योंकि today onwards your life will be same, never be the same. आज से आपका जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहेगा। Day by day, हर दिन when you're seeking God, जब आप प्रभु को ढूंढते हैं, Jesus will increase inside of you. यीशु आपके अंदर और बढ़ता हो जाएगा। Time will come. एक समय You आएगा look like Jesus. आप यीशु के समान The दिखोगे people will see Jesus is in you. और लोग आपको देखेंगे तो यीशु को देखेंगे। Oh, thank you, Jesus. Kura shakala mahasakatala. Oh, bebalanda.
dear Heavenly Father, हम प्रिय स्वर्गीय पिता, Daddy God, we love you. वो पिता हम आपसे प्रेम करते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं ईश्वर। We give all the glory. हम सारा महिमा आपको देते हैं। Lord, fill your spirit of revelation, Lord, पिता तेरे प्रकाशन की आत्मा से तू भर, to reveal God in me. प्रभु यीशु को मुझ में तो प्रकट I कर, want to know more and more God. और मैं प्रभु को और गहराई से और I want to गहराई see से more after you, Lord. और मैं और ज्यादा तुम्हें ढूंढना चाहता हूँ Crazy for Jesus. और यीशु के लिए दीवाना हो गया हूँ। Amen, amen, amen. Jesus. It's more than thank you, Jesus. अपने आप को प्रकट करिए, आराधना कीजिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं। We give all the glory. हम सारा महिमा आपको देते In हैं। Jesus' mighty name. यीशु के महान नाम में Amen. आमीन। Let's be seated. कृपया करके बैठ जाइए। I also don't shift this message to another message. मैं ये संदेश से दूसरा संदेश में जा नहीं पा रहा हूँ। One day, the Satan went to God. एक बार शैतान जो है परमेश्वर के पास गया In Job chapter 1, और अय्यूब के पहले अध्याय में the Bible says, बाइबल कहती है God is boasting about Job. परमेश्वर योग के बारे में तारीफ करता Hey, है। Satan, can you see my servant Job? ये शैतान क्या तू मेरे दास योग को जानता है? He is proud about Job. वो अय्यूब के बारे में बहुत घमंड रखता था। Listen carefully. ध्यान देके सुनना। God is proud about you. परमेश्वर आपसे गर्व रखता है, Amen. आपके लिए गर्व रखता है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। He's telling वो कहता है none other than like Job. योग के समान कोई नहीं है। He's a holy man. वो पवित्र व्यक्ति है। Hallelujah. हालेलुया। The devil says, शैतान कहता है God, परमेश्वर you don't know तू नहीं जानता है who are people. लोग कौन है। People are expecting only profit. लोग केवल तेरे उससे फायदे को लेने को ही जानता है।
But God said, लेकिन परमेश्वर no, कहता है, no, my Job is not like नहीं नहीं नहीं, मेरा अय्यूब ऐसा नहीं है। that. Then Satan says, शैतान कहता है, take on what you are given. ठीक है, तू उसके पास जो कुछ आशीष दिया है पूरा ले ले, Job will deny you. फिर अय्यूब तुझे नकारेगा। Listen carefully. याद दे के सुनना। Then God gave permission और परमेश्वर ने उसको इजाजत दे दी, to destroy everywhere of Job. हर एक अय्यूब के पास जो भी संपत्ति, हर एक आशीष को नाश कर, Even loving children. यहाँ तक कि उसके खुद के बच्चों को भी नाश करने का इजाजत What दी। Bible says, बाइबल क्या कहती है? in the mouth of Job, अय्यूब के मुख में just one word also didn't come. परमेश्वर के विरोध में एक शब्द भी नहीं आया। Hallelujah. हालेलुया। That is वो ही है, his seeking God. वो परमेश्वर को खोज करने वाला That व्यक्ति is, था। you understand. उसको समझिए कि आप परमेश्वर को उस हद तक समझना है। Amen. आमीन। Again Satan came. फिर से शैतान आया, God told, see Job, परमेश्वर ने कहा, you देख have अय्यूब, destroyed everything. अभी मैंने सब कुछ नाश कर दिया, But Job did not deny me. अय्यूब ने मुझे नकारा नहीं। No Lord, नहीं प्रभु, you just affect his body. तू उसके शरीर को कुछ बीमारी डाल, Surely he will deny you. वो वाकई वो तुझे नकारेगा। God gave permission. परमेश्वर ने उस शैतान को उसका भी इजाजत दे दिया। याद दे के सुनना, What happened? क्या हुआ? The Bible says, बाइबल कहती है, Satan came and the whole body was affected. और शैतान आके उसके पूरे शरीर को बीमारी से भर दिया, Cancer of skin cancer. जैसे मानो एक स्किन का कैंसर हो, चमड़े का कैंसर At हुआ। the time wife came, और उस समय उसकी पत्नी आई she said, और पत्नी कहती है, now अभी you didn't live upright. अभी तक क्या तू सही जिंदगी नहीं जिया? Die जा मत। and write a divorce letter and went. एक डाइवोर्स पत्र लिखकर चली गई हो। Now Job is alone. अभी अय्यूब अकेला है Job was eaten by the devil. और अय्यूब को शैतान सताते ही जा रहा था। The Bible says, बाइबल कहती है, in this crucial moment, और ऐसे परिस्थिति में भी Job अय्यूब did not ask why, Lord. उसने प्रभु से पूछा नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? Then comes, Lord, why, Lord? आज एक सरदर्द आएगा, प्रभु ये एक सरदर्द क्यों है मुझे? Why? Because क्योंकि- we don't know who is God. क्योंकि हम नहीं जानते हमारा परमेश्वर कौन है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Seeking God, परमेश्वर को खोज करना, God will reveal you. परमेश्वर आपको प्रकट करेगा। When you understand God, जब आप परमेश्वर को when you are समझोगे, knowing day by day God, हर दिन आप परमेश्वर को जब आप करीबी रीति से जानोगे, anything happens, चाहे कुछ भी हो जाए आपके you साथ, will not question God. आप परमेश्वर को प्रश्न नहीं You करेंगे, are praising God. आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे। Like Job. अय्यूब के समान, God has given, God has taken. परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने लिया, प्रभु की स्तुति हो। It is very tough actually. ये बहुत कठिन है। Speaking, sharing, messaging, it is very easy. संदेश बोलना, प्रचार करना इस विषय में बहुत आसान है। 2009, my son, God took my son. और 2009 में परमेश्वर ने मेरे बेटे को ले लिया। I went to one place called Dharwad. मैं धारवाड़ में एक जगह में गया था, We have given 35 baptism heathen people. और अन्य जाति लोगों के बीच में हमने अन्य जाति से आए हुए लोगों को हम 35 लोगों को बपतिस्मा दिया। रात को यात्रा किया, Traveling night. रात को यात्रा कर रहा था, That is the time. और उस समय I में reached Bangalore 3 hours late. और बैंगलोर में मैं 3 घंटा देरी से पहुंचा। When I stepped inside of the house, जब मैं घर के अंदर कदम रखा I saw my son dead body. और मैंने मेरा बेटा का शव को देखा, Very pathetical condition. और बहुत बुरे परिस्थिति में। All children are sitting with dead body of my son. और सारे बच्चे मेरे बेटे का शव के पास बैठे हुए थे। What they're telling? वो लोग क्या कह रहे हैं? Uncle, अंकल, we have seen with our own eyes. हमने अपने आंखों से देखा है, Now our brother died. अभी हमारा भाई मरा, You make him rise up. तो उसको चिल्ला। That made me to broke.
totally. उनका वो शब्द मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया। 1 month. एक महीना That very pathetic condition, that cry will not go in our life. और मेरे जीवन से वो एक महीना तक वो रोना रुका नहीं। But I said, God, लेकिन मैं प्रभु से कहा, whatever you do, Lord, तू कुछ भी कर प्रभु, I will not leave you, leave your ministry. मैं तेरी सेवा करना नहीं छोड़ूंगा। After 3 days his death, और 3 दिन उसके मर के 3 दिन के बाद I went to open a crusade in Beed, बीड डिस्ट्रिक्ट in Karnataka. कर्नाटक में एक बीड डिस्ट्रिक्ट में जाकर मैंने 3 दिन का सभा किया। Listen carefully. ध्यान दे के सुना। That is the time. और उस समय There is no church in that place. उस जगह में कभी कोई कलीसिया नहीं था। You're taking with your Bible in that place. अगर आप आपके बाइबल को, पवित्र शास्त्र को उस जगह में लेके Those जाओगे, people will hit you. वो लोग आकर आपको मारेंगे। But this 3-day crusade, लेकिन ये 3 दिन का सभा, today 6 servants of God doing ministry in that place. आज वहाँ पर 6 परमेश्वर के दास लोग सेवा कर रहे हैं। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। But my condition, लेकिन मेरा नीच it परिस्थिति, is totally scattered. मैं पूरी तरह से टूटा हुआ था। One day, एक दिन, listen carefully. ध्यान दे के सुनना, I got up by the vision. मैं एक दृष्टांत को देखा। Listen, Jesus, God is so good. देखिए परमेश्वर कितना भला है। He will not do any bad things to his children. वो कभी भी उसके बच्चों के साथ बुराई नहीं करता है। My question, मेरा प्रश्न, Lord, you can tell me and take me. प्रभु तेरे को ले जाना ही था तो मुझसे बोल कर ले जाता। I told many times. परमेश्वर ने कहा, मैंने कई बार तुझसे कहा, You cried. लेकिन तू रोता रहा। Many times you took his dead body to the hospital. और कई बार तू उसके शव को हॉस्पिटल ले गया। When going in the way, और जब गाड़ी में जा ही रहा I है, called Pastor Manohar. और मैं पास्टर के साथ Suddenly he take the phone अचानक वो फोन उठाया and he will pray. और वो प्रार्थना करता, My son Joshua, dead Joshua is out. मेरा बेटा जो मरा हुआ था जोशुआ जी उठा। Many times happened. ऐसे कई बार हमने किए, But I didn't understand. लेकिन उस समय मैं नहीं समझ पाया। God took me to the beautiful place in the vision. और परमेश्वर ने मुझे दृष्टांत में एक सुंदर सा जगह लेकर गया, वो सपना देखा। Beautiful place, garden is. और एक बहुत सुंदर सा बागान है, गार्डन, Varieties of flowers. और उधर बहुत अलग अलग प्रकार के फूल है। Just beautiful, I didn't see anywhere. और इतना सुंदर वो बगीचा था, आज तक मैंने वैसा बगीचा नहीं देखा। Then there, small children are playing. वहाँ पर छोटे बच्चे खेल रहे हैं। One more the surprising things. और एक आश्चर्य की बात है, My son is playing with them. मेरा बेटा भी उन बच्चों के साथ खेल रहा है। Here, यहाँ पर he can't walk. यहाँ पर वो चल नहीं पाता था, We have to feed him. हमें उसे खिलाना पड़ता था। Every day we have to put 100 rupees mention. हर दिन हमको उसके पीछे 100 रुपया का दवा देना पड़ता था। He suffered a lot. मेरा वो बेटा बहुत तकलीफ उठाया, But there, लेकिन वहाँ पर he was playing. वो खेल रहा था। One more scene. और एक दृश्य देखा, Beautiful scene. और वो सुंदर सा Jesus दृश्य, is playing with them. यीशु उन बच्चों के साथ खेल रहा है। God, am I seeing? Am I imagining or seeing something? परमेश्वर, मैं मेरी कल्पना कर रहा है या मैं वाकई कुछ देख रहा The हूँ? Holy Spirit spoke to me. तब पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें किया। One question. एक प्रश्न, Your son तेरा बेटा is living better there or better here? उत्तम रीति से वहां जी रहा है या यहाँ जी रहा है? Suddenly I answered, अचानक से मैंने उत्तर दिया, there my son is better. प्रभु मेरा बेटा वहां बहुत अच्छा That है, is the place, is the better place. वो उत्तम स्थान है उसके लिए। Then the Holy Spirit told me, तब पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, come out from your grievous. फिर तेरे दुख से तू बाहर आ। That minute, उसी क्षण God struck in all our crying. परमेश्वर ने हमारे अंदर का वो दुख और रोना निकाल दिया। That is your God. वो तुम्हारा भी प्रभु है। Hallelujah. हालेलुया। Whatever happens जो भी कुछ होता है, in behind the situation, और उस परिस्थिति के पीछे great purpose of God there. परमेश्वर का एक बड़ा उद्देश्य है उसमें भी। After that, और उसके बाद I didn't see my son.
उसके बाद मैं कभी मेरे बेटा को वापस After नहीं देखा that, I didn't remember memories. और मैं बेटे का ऐसा याद भी नहीं कर लिया Because he is fond of me. क्योंकि वो मुझसे बहुत प्रेम करता था। His brain is not working, he is not speaking, but when daddy's vehicle sound he hears, he will just jump in the bed. वो मंदबुद्धि था, वो बोल नहीं पाता था, लेकिन अगर मेरे गाड़ी का आवाज सुना तो वो ऐसा कूदता था। Somebody will tell, Daddy came. अगर कोई बोलता He उसे was "डैडी so आया", alert, he was so excited. वो इतना चौकन्ना होके एकदम अलर्ट हो जाता When था। I saw his face, जब मैंने उसका चेहरे को I देखा, forgetting everything. मैं सब कुछ भूल जाता था। He is my comfort. वो मेरा सांत्वना है। Hallelujah. हालेलुया। Whatever God is doing, जो भी कुछ प्रभु करता है, it is the best thing He is doing. वो आपके जीवन में उत्तम काम करता है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। That is our God. वो हमारा प्रभु है। When you seek after Him, जब आप उसको खोजते हो, all goodness of God, सारा परमेश्वर you की will not भलाई see, you will experience. आप केवल देखोगे नहीं, लेकिन अनुभव लोगे। Amen. आमेन। Taste and see that the Lord is good. चक्कर देख लो कि परमेश्वर कितना भला है। Amen. आमेन। Tasting God, परमेश्वर को चखना means seeking God. मतलब परमेश्वर को When you are ढूंढना। seeking God, जब आप परमेश्वर को ढूंढते हो, God will reveal His goodness. परमेश्वर उसकी भलाई को आपको प्रकट करेगा। God told Moses, परमेश्वर ने मूसा "You से want to कहा, see my glory? तू मेरी महिमा को देखना चाहता है Yes, I will bypass all my goodness before you. और मेरी सारी भलाई तेरे सामने Then कर जाएगा। you will see my glory. तू मेरी महिमा को देखेगा। First taste all the goodness of God. परमेश्वर की भलाई का सारी बातों को पहले चख कर देखो, स्वाद ले लो, Then you will move in the glory. फिर आप महिमा में आगे बढ़ोगे। Manifest His glory. परमेश्वर उसकी महिमा को प्रकट करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Ministry means paying the prices. सेवकाई मतलब एक दाम चुकाना होता है Don't think lightly ministry. और सेवकाई को हल्का रखी से नहीं लेना। Hallelujah. हालेलुया। When you are doing ministry, जब आप सेवकाई करते हो, nobody can understand you. कोई आपको समझ के नहीं लेगा। That is the word of God says. परमेश्वर का वचन कहता When है, you led by the Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा के अगुवाई You से know आप करते हो, everything. आप सब कुछ जानते but हो, nobody knows you. लेकिन कोई आपको नहीं जानता। 1 Corinthians chapter 2 verse 15 says, पहला कोरिन्थियों का दूसरा अध्याय But we का are 15 very- वचन कहता है, we लेकिन are- फिर भी हम चिंता करते रहते हैं। nobody knows me, कोई मुझे समझ nobody के is नहीं लेता है, understanding me. कोई मुझे नहीं जानता है। That is why Maramari in the house. इसलिए घर में मारामारी हो जाता है। Bible says like that. बाइबल इस तरह से कहता Why है, are you expecting know your husband, your wife, your children? क्यों आप अपेक्षा करते हो आपके पति आपको समझ के लेना है, आपके बच्चे आपको समझ के लेना है, But आपके God knows you. लेकिन परमेश्वर आपको जानता When है। you know God, जब आप परमेश्वर को जानते हो, that is the time वो समय है you didn't expect anything from anyone. आप किसी से भी कोई भी बातों का अपेक्षा नहीं करो। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। That is the foundation of Jesus' ministry. वो यीशु मसीह की सेवकाई का नींव। I know my Father. मैं मेरे पिता को He जानता हूँ, knows me. वो मुझे जानता है। I know my Father. मैं मेरे पिता को He जानता हूँ, knows me. वो मुझे जानता है। When you are knowing God, जब आप परमेश्वर को जानते when हैं, you are connecting God, जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, when you are be with Jesus, जब आप यीशु के संग बने when रहते हैं, desperate for the presence of God, जब आप बेचैन हो जाते हो परमेश्वर की उपस्थिति that के is the लिए, time वो समय है you will know God. आप परमेश्वर को जानोगे। Amen. आमेन। Jesus said, यीशु ने कहा, John 10:28, यूहन्ना का 10वां अध्याय का I 28वां वचन, know my sheep. मैं मेरे भेड़ को जानता They हूँ, also know me. वो लोग भी मुझे जानते हैं। God trusted and said that. और परमेश्वर ने भरोसा कर कहा, But we are a sheep of Jesus. हम ऐसे यीशु के भेड़ हैं, We don't know our good shepherd. हम अपने अच्छे चरवा को नहीं जानते। That is why इसलिए we are hitting by the devil. हम शैतान से मार खाते हैं। When you know God, जब आप आपके you परमेश्वर will को hit the जानते हैं, devil. आप शैतान को You will मारोगे। destroy the devil. आप शैतान
के राज्य को नाश करोगे। Amen. आमेन। Are you happy? क्या आप आनंदित है? Are you happy? क्या आप आनंदित है? That our nature is all the time we will demand profit. हमारा स्वभाव क्या, हमेशा हम मांग करते रहते हैं। When I say I love you, जब मैं आपसे कहता हूँ मैं प्रेम करता हूँ, I expect they also say love you. मैं अपेक्षा करूंगा कि सामने वाला भी कहे मैं भी तुमसे प्रेम करता That हूँ। is in our DNA. हमारे डीएनए में हमेशा अपने फायदे की सोचता है, Expecting everything from everybody. सभी से सब कुछ बातों का अपेक्षा करना, But that has to be done. लेकिन वो मरना जरूरी है। Then you will see God. तब आप परमेश्वर को When खोजोगे। self died, जब अपना स्वयं मर जाता है, when self is going away from you, जब आपका मैं या स्वयं आपसे अलग हो जाता that है, is the time वो समय है you will seek God. आप परमेश्वर को You ढूंढोगे। will desperate for God. आप परमेश्वर के लिए बेचैन हो You जाओगे। don't need anything. आपको किसी चीज की You are जरूरत not demanding God. आप परमेश्वर से मांग You नहीं will करते। everything for God. आप परमेश्वर के लिए सब Lord, कुछ I करते। know you, Lord. परमेश्वर मैं तुझे You जानता have हूँ, already given me, तू Lord. मुझे दे दिया है। Hallelujah. हालेलुया। That is what Paul is writing इसलिए पौलुस लिखता है in Corinthians. कोरिन्थियों में, I die daily. मैं हर दिन मरता हूँ। Amen. आमीन। Dying daily means हर दिन मरना मतलब dying ourselves. अपने आप के लिए, स्वयं के लिए मरना। Amen. आमीन। The self is the biggest demon is inside of our life. हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुष्टात्मा वो हमारा स्वार्थ है, स्वयं है। Destroying. और हमारा स्वार्थ या हम मैंपन जो है हमें नाश करता है। Forget the Holy Spirit will lead you. भूल जाओ, पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन करे ऐसी परिस्थिति में। You are speaking in tongues hours together. आप घंटों अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, Self has to be denied. लेकिन अगर आप में मैंपन है, Self has to be crucified. नाम करना जरूरी है, उसे क्रूस पे The चढ़ाना जरूरी है। self has to be destroyed. आपका मैंपन या स्वयं को आपको नाश करना जरूरी है। That is the time. और वो समय You will seek God with all your heart. आप परमेश्वर को ढूंढोगे आपके संपूर्ण हृदय से। You just living after God. आप केवल प्रभु के लिए जियोगे। That is the life of Jesus. वो यीशु का जीवन है। Why Jesus is longing for Father. जैसे यीशु पिता के लिए तरसता है, Father also longing Jesus. पिता भी यीशु के लिए तरसता है। Hallelujah. हालेलुया। That relationship. वो रिश्ता In that relationship, और उन रिश्तों में ministry will birth. सेवकाई का जन्म होता है, That ministry will bless the nation. और वो सेवकाई राष्ट्र को आशीष करता है, लोगों को आशीष करता है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Decide. निर्णय लो, Just decide. निर्णय लो। Dedicate yourself to seeking God अपने आप को समर्पित कर दो प्रभु यीशु को खोजने के लिए, continuously. लगातार विधि से। That is foundation of your life. आपके जीवन का वो नींव है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। God bless you. प्रभु आपको आशीष करे। We'll go and tea break and we'll come back. हम चाय पी के लौट कर आ जाएंगे। एक विषय कहना चाहती हूँ, सुबह के नाश्ता का टाइमिंग क्या है पता है आप लोग को? कितना बजे नाश्ता आता है यहाँ पर? 8 बजे। तो कल से आप लोग 7:15 को नाश्ता लेकर बाद में आपको जो काम करना है करेंगे, ठीक है? क्योंकि आज सिस्टर सुबह 8 बजे से 9 बजे तक खड़ा रहा, और हम जब भी किसी को भेजे, आप लोग ने किसी और के पास प्लेट भेजा, सिस्टर के लिए वो बहुत कंफ्यूजन था, कौन किसका बाप को